Namaskar and Suprabhat. Very good morning my friends. Without wasting a time, चलो example number 2, maths chapter number 2, polynomial, and let's proceed further. Example number 2, question is find the value. Value का मतलब होता है कीमत, find करना है किसका? P of x 5x square minus 3x plus 7 is the polynomial with variable x, and you are supposed to take value of x is equal to 1. So what we are going to do? To find the value, we are going to replace x with 1. x with 1 मतलब ये जहाँ जहाँ x वहाँ वहाँ 1 मीट. ध्यान दो इधर, समझ में आ रहा है ना? जहाँ जहाँ x वहाँ वहाँ 1. So we will write p of 1 is equal to 5 into bracket 1 square minus 3 into 1 plus 7. Shabash. Therefore p of 1 is equal to 5 minus 3 plus 7. Now friends, 5 and 7 both are positive, so we will write 12 minus 3, that gives you 9. Therefore p of 1 is equal to 7 is the value of the p of x. बात समझ में आई? So that is your सही जवाब. Let us take question number 2. Example 2 में बहुत सारे examples हैं. I think around 4-5. I have taken 2 and in PDF you will find all the examples. Okay. So q of y, now q and y is the variable 3y cube minus 4y plus root 11 at y is equal to 2. क्या करेंगे? We are supposed to take y is equal to 2, मतलब जहाँ जहाँ y वहाँ वहाँ 2, जहाँ जहाँ y वहाँ वहाँ 2. So we will write q of 2 is equal to 3 into 2 cube minus 4 into bracket 2 plus root 11. Outcome is q of, sorry friends, q of 2 is equal to 3, and what is the cube of 2? That is 8. So we write 3 into bracket 8 minus 4 2s are 8 plus root 11. Now 24 minus 8, positive, negative, subtraction, we will get 24 minus 8 is equal to 16 plus root 11 is your sahi jawab. Now let us take example number 3. Check whether minus 2 and 2 are zeros of the polynomial x plus 2. चेक करना है, मतलब निश्चित नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है. अगर हम x की जगह minus 2 रखेंगे and if we get the 0, we say it is 0 of the polynomial, and if we do not get 0, then we say it is not a 0 of the polynomial. बात समझ में आ गई आप लोगों को? Okay. Now here how many values are given of x? That is minus 2 and 2. So p of x is equal to x plus 2 and x is equal to minus 2 and 2. A, p of minus 2 means we are going to replace x with minus 2. That gives you minus 2 plus 2 is equal to 0. देखो 0 मिला आपको? Okay. Now p of 2, that means x is to be replaced by 2, and in that case we will get 2 plus 2 is equal to 4, which is not equal to 0. देखो 0 नहीं मिला, तो एक में 0 मिल गया, दूसरे में नहीं मिला. So finally our answer is here minus 2 is the 0 of the polynomial, whereas 2 is not the 0 of the polynomial. ठीक है, चलिए. Now let us take example number 4, जिसके अंदर लिखा है find the 0. यहाँ पे लिखा था find the value, यहाँ पे लिखा है find the 0. मतलब you are supposed to find such a value that will give you p of x is equal to 0. Now what is the polynomial? p of x is equal to 2x plus 1. कुछ करना नहीं है, कुछ करना नहीं है. इक्वेशन को याद करो, solving a simple equation. Now p of x is equal to 2x plus 1. So 2x plus 1 इसको solve करेंगे like an equation, and that gives you
2x plus 1 is equal to 0, 2x, positive 1 will become negative 1 and therefore x is equal to minus 1 upon 2. Answer, x is equal to minus 1 upon 2 is the zero of the p of x. अब समझो अगर आपको इसको वेरीफाई करना है कि भाई whether your answer is right or not, तो आप क्या करोगे दोस्तों? चलिए, p of x क्या है? p of x is equal to 2x plus 1. What you obtain? X is equal to minus 1 upon 2. So now we will write x minus 1 upon 2. In place of x, now we will put minus 1 upon 2. So here it is 2 into bracket minus 1 upon 2 plus 1. Now cancelling 2, 2, we get minus 1 plus 1 is equal to 0. That means your answer is बिल्कुल सच्चा. ओके, चलो आगे चलते हैं. एग्जाम्पल नंबर 5 खुद से करना है, खुद से करना है. एक्सरसाइज 2.2 एंड क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द वैल्यू. अभी हमने एग्जाम्पल किया, फाइंड द वैल्यू कहा था, कीमत पता लगाना है. सेम थिंग. पूरा क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3. एग्जाम्पल 5 पीडीएफ में है, डोंट वरी. पीडीएफ में सॉल्यूशन है, डोंट वरी. ओके, फाइन. यहां पे भी एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 1 में 1 मैंने आपके लिए किया हुआ है, 2 and 3 यू आर सपोज टू ट्राई. बट फ्रेंड, पीडीएफ हैज द सॉल्यूशंस. पीडीएफ में सारे सॉल्यूशंस हैं, आपको चिंता करने का कोई जरूरत नहीं है. यहां पे मैं 1-2 सम्स आपके सामने कर रहा हूं ताकि यू कैन अंडरस्टैंड. और पीडीएफ में सारी बातें हैं, मैं पहले भी बोल चुका हूं, मैं आज भी कह रहा हूं. हर एक एग्जाम्पल का सॉल्यूशन है, हर एक एक्सरसाइज का सम्स का सॉल्यूशन है. मतलब आपको इधर उधर कहीं कुछ भी देखने की, ढूंढने जाने की जरूरत नहीं है. घर में बैठना है, आराम से पीडीएफ को देख के समझ के करना है. चलिए आगे चलें. What we are supposed to find? Find the value. P of x is equal to 5x minus 4x square plus 3 and x is equal to 0. That means x is to be replaced by 0. मतलब जहां जहां x वहां वहां 0. P of 0 is equal to 5 into 0 minus 4 0 square plus 3. Now any number multiplied by 0, we know the outcome is 0 plus 3. So finally P of 0 is equal to 3 is your सही जवाब. 2 और 3 आप खुद ट्राई करना, नहीं समझ में आता है तो पूछना. क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड P of 0. इसका मतलब वेरिएबल का वैल्यू 0 लेना है. P of 1 1 लेना है. P of 2 2 लेना है. बात समझ में आ गई. नाउ व्हाट इज द पॉलिनोमियल? P of y is equal to y square minus y plus 1. अब यहां पे दोस्तों y is equal to 0, y is equal to 1 and y is equal to 2 and we will solve it one by one. The first, P of 0, 0 square minus 0 plus 1. Now 0 is 0, so 1 is the answer. So P of 0 is equal to 1 is your sahi jawab. Now in case number 2, P of 1, so in place of y we will put 1. 1 square minus 1 plus 1. Now plus and minus get cancelled. So 1 is the sahi jawab. Similarly, third case mein in place of y we will put 2. So P of 2 is equal to 2 square minus 2 plus 1. Now dear friends, we know 2 square, बिल्कुल सही. हाँ, 2 square is equal to 4, right? Minus 2 plus 1. और हाँ, 4 plus 1 is equal to 5 minus 2 is equal to 3 is your सही जवाब. तो तीनों मिल गए आपको. P of 0 is equal to 1, P of 1 is equal to 1 and P of 2 is equal to 3. बाकी जो है क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 यू आर सपोज टू ट्राई. पीडीएफ में है. हाँ, पूछो मत, है पक्का. 2, 3 and 4 are there in the PDF. Now let us take question number 3. Verify मतलब पक्का नहीं है, चेक करना है. क्या करना है? चेक whether the following are zeros or not. है भी या नहीं भी. क्या करेंगे हम?
P of x is equal to 3x plus 1 is the given and we are supposed to take x is equal to minus 1 upon 3. अभी थोड़ी देर पहले हमने किया था, एक सम्स किया था जिसमें वैल्यू फाइंड आउट किया. मैंने आपको बताया कि भाई यू कैन चेक इट इन दिस मैनर सो यू कैन नो वेदर योर आंसर इज सही और गलत. बस वही चीज यहां पे करनी है आपको. x is equal to minus 1 upon 3. So in place of x, we will put minus 1 upon 3. Now here 3 into bracket minus 1 upon 3 plus 1. 3 get cancelled. So finally we get minus 1 plus 1, that is equal to 0. So P is of minus 1 upon 3 is equal to 0. Hence we can say minus 1 upon 3 is a 0 of given P of x. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8 PDF में है, आपको खुद से करना है. ना समझ में आए तो मुझसे पूछना है. ओके फ्रेंड्स, आगे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ द सेम एक्सरसाइज 2.2. फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल. ऐसा भी एग्जांपल हमने किया है. फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल. P of x, x plus 5. X plus 5 is to be solved like an equation. X plus 5 is equal to 0. So x is equal to plus 5 will become minus 5 and that becomes your सही जवाब. नहीं, खुद से करना है तो बोलो ना यार, मैं कहाँ मना कर रहा हूँ. समझ में आ गया, करो खुद से. अच्छा, पूरा क्लास बोल रहा है, ओके फाइन, एक कर दूं. अब मैंने लिख दिया है यार, P of x is equal to x minus 5. Solve like an equation. minus 5 will become plus 5. और इसके साथ में बाकी के सारे आप खुद से करोगे. ठीक है, देख लेना. 7 है शायद, 2 मैंने किए, बाकी के 5 आप करना. नहीं है, PDF में है, PDF में ऑलरेडी है, पर कॉपी मत करना, खुद से करना. जब आपने बोला है कि हम खुद करेंगे तो खुद से करना. ठीक है, अब हम एक बेसिक चीज सीख लेते हैं बिकॉज इट इज रिलेटेड विद द रिमाइंडर थ्योरम. 12 डिविडेंड P of x, 6 जिससे हम डिवाइड करेंगे, डिवाइजर डिनोटेड बाय G of x. डिवाइड करने से वी विल गेट एन आउटकम 2, दैट इज कोशेंट Q of x. 12 minus 12 करके 0, दिस इज द रिमाइंडर पार्ट x R of x. अब दोस्तों अगर हम इसको देखें तो रूल तो हमको पता है ना कि भाई डिविडेंड इज इक्वल टू मल्टीप्लीकेशन ऑफ डिवाइजर एंड कोशेंट प्लस रिमाइंडर. ये तो हमको याद है. बिकॉज वी आर भोलास, हम भोले हैं, इसलिए क्या करते हैं हम लोग, भूल जाते हैं बार बार. हाँ, किया तो है हमने, जानते भी हैं कि भाई डिविडेंड इज इक्वल टू मल्टीप्लीकेशन ऑफ डिवाइजर एंड कोशेंट प्लस रिमाइंडर. लेकिन बिकॉज वी आर भोलास हम थोड़ी थोड़ी देर में बातें भूल जाते हैं, इसलिए हम लोगों को पढ़ाई के दौरान वापस याद दिलाना पड़ता है, रिकॉल रिवाइज करवाना पड़ता है, और वही कोशिश तो मैं कर रहा हूं दोस्तों यहां पे. इज दैट क्लियर? ओके, नाउ इफ यू सी दिस इज 12 इज इक्वल टू 6, कोशेंट में मिला 2 तो 6 मल्टीप्लाई बाई 2 एंड प्लस रिमाइंडर इज इक्वल टू 0. अब देखो 6 इंटू 2 इज इक्वल टू 12, तो 12 एंड 12 दैट इज LHS इज इक्वल टू RHS. चलिए एक और. Now we are going to divide 13 dividend P of x, 6 divisor G of x, 6 2s are 12, 2 is the quotient Q of x and 13 minus 12 is equal to 1 is remainder R of x. अब यहाँ पे देखो 13 is equal to 6 multiply by 2 and remainder plus 1 करके देखो 13 LHS is equal to RHS. तो बात तो वही हुई ना दोस्तों कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय कोशेंट प्लस रिमाइंडर. ठीक है, अब थोड़ा और आगे चलते हैं और बात को समझते हैं कि भाई हियर 6 को जब 12 को जब हमने 6 से डिवाइड किया, रिमाइंडर हमको मिला 0. सो वी कैन से कि 12 इज डिविजिबल बाय 6 बिकॉज R of x इज इक्वल टू 0. 12 इज डिविजिबल बाय 6, क्यों? बोले R of x इज इक्वल टू 0, क्योंकि रिमाइंडर में हमको 0 मिला. इसका मतलब ये हुआ 6 and 2 आर फैक्टर्स ऑफ 12. इसका मतलब ये हुआ कि हमने 6 से डिवाइड किया, 0 मिला. अगर हम 2 से भी डिवाइड करते, इफ वी डिवाइड
12 by 2, again remainder will be 0. तो 6 and 2 are factors of 12 and 12 is a multiple of 6 and 2. देखो 6 के टेबल में भी 12 आता है, 6 2s are 12 and in the table of 2 also you can find 12, 2 6 are 12. इसका मतलब 12 is a multiple of 6 and 2. बात समझ में आई? अगर डिवाइड होता है, रिमाइंडर 0 मिलता है तो डिविडेंड क्या है? इज ए मल्टीपल ऑफ डिवाइजर एंड कोशंट, एंड डिवाइजर एंड कोशंट आर फैक्टर्स ऑफ द डिविडेंड. नहीं रट्टा नहीं मारना है भाई साहब, रट्टा नहीं मारना है, समझ के करना है. हाँ जरा 2-4 बार करोगे ना तो बात दिमाग में हाँ अपने आप फिट हो जाएगी, अपने आप फिट हो जाएगी. रट्टा नहीं मारना है, ठीक है. अब 13 इज नॉट डिविजिबल बाय 6. ऐसा हमने क्यों कहा? क्योंकि रिमाइंडर इज 1. r ऑफ x इज नॉट इक्वल टू 0. जब हमने 13 को 6 से डिवाइड किया तो हमको रिमाइंडर 0 नहीं मिला, बल्कि हमको रिमाइंडर क्या मिला? 1 मिला. इसलिए हम कहेंगे 6 and 2 आर नॉट फैक्टर्स ऑफ 13. इसका मतलब हुआ 13 इज नॉट डिविजिबल बाय 6 एंड नॉट डिविजिबल बाय 2. अपार्ट फ्रॉम दैट 13 इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 6 and 2. अब देखो 6 के टेबल में 13 आता है, जिसको टेबल आता है उसके टेबल में नहीं आएगा, बाकी लोगों के टेबल में आ जाएगा. और 2 के टेबल में भी 13 नहीं आता है. ठीक है, तो यहां पे ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया. इसी की बुनियाद पे रिमाइंडर थ्योरम हमको समझना है और सीखना है. ओके दोस्तों, तो यहां रुकते नहीं हैं, हाँ आगे चलते हैं. ओके फ्रेंड्स, अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की डिविडेंड is equal to divisor multiplied by quotient plus remainder, which is denoted by p of x is equal to g of x multiplied by q of x plus r of x. Now long division method अच्छी तरह से ध्यान से समझना है और बार बार वीडियो को वॉच करना है. ठीक है, हाँ, तब जाके बात आसानी से समझ में आ जाएगी. ठीक है, चलिए एग्जाम्पल 6. व्हाट इज गिवन? डिवाइड p ऑफ x प्लस 3x स्क्वेयर माइनस 1 बाय g ऑफ x 1 प्लस x. सबसे पहले p ऑफ x इज टू बी रिटर्न इन द डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ एक्सपोनेंट. अब जैसे हमने देखा रेज टू पावर 2, तो फर्स्ट 3x रेज टू पावर 2 प्लस x raised to power 1 and minus 1x raised to power 0, x raised to power 0. Similarly, g of x में भी देखना है आपको, x raised to power 1 और 1 raised to power 0. इसका मतलब हुआ यहां पे x raised to power 0. अरेंज हो गया 3 1 0 1 0. Now we can start our work. 3x square plus x minus 1 divided by x plus 1. Now dear friends, in divisor how many terms are there? 1 and 2. 1 and 2. So here also you are supposed to take two terms, 3x square plus x minus 1 को छोड़ देना. Is that clear? Now 3. What is required? 3. Is there 3? No. So multiplied by 3. X square, how many x you have? 1. So we will put 1x over here. So now 3x. Now 3x is to be multiplied by the divisor, and 3x into x gives you 3x square plus 3 into x 1, so we get 3x. Normally division में हम क्या करते हैं? We change the sign. We change the sign. यहाँ पे भी पॉजिटिव कर देंगे नेगेटिव, पॉजिटिव will become negative. Positive, negative get cancelled. Here you will cancel the earlier sign and now you will consider minus. So 1 and 3, greater is 3, 3 is minus, so we will put a minus ka sign over here, and 3 minus 1 gives you 2x. Minus 1 is to be written over here. Now again, two terms. Which sign is required? Minus. So put a sign of minus.
What is required? 2. Is there 2? No. So put 2 over here. Okay. Now minus into plus minus. 2 into x, 2x. Minus into plus minus. And 2 into 1, 2. Again we will change the sign. Negative will become positive and negative will become positive. So negative and positive gets cancelled. Now here 2 is positive and 1 is negative. So 2 minus 1, your remainder is plus 1. So finally we will write q of x is equal to 3x minus 2 and r of x is equal to 1. बोलो बात समझ में आई? चलो एक और एग्जांपल लेते हैं और उसको समझते हैं. P of x. अब यहां पे मैंने क्वेश्चन लिखा नहीं है फ्रेंड्स. क्वेश्चन आप लोग पीडीएफ में से देखोगे और लिखोगे. ठीक है, यहां पे मैंने डायरेक्टली अरेंज कर दिया है आपके लिए. P of x is 3x square raised to power 4 minus 4x raised to power 3. क्वेश्चन में आप देखोगे तो रेज टू पावर 2 नहीं है, तो हमने क्या कर दिया? ऐड कर दिया. किसके साथ? 0 प्लस 0x रेज टू पावर 2 माइनस 3x रेज टू पावर 1 एंड माइनस 1x रेज टू पावर 0. अभी देखो डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ एक्सपोनेंट हो गया, बड़े से छोटा 4 3 2 1 0, नथिंग इज मिसिंग. सारे पावर्स आ गए. 4 3 2 1 0, बीच में कोई मिसिंग नहीं है. अगर है तो 0 के साथ ऐड करना है. हाँ, क्योंकि 0 के साथ में मल्टीप्लाई करो, 0 ऐड किया भी नहीं भी, दोनों हो गया. नाउ g ऑफ x रेज टू पावर 1 एंड माइनस 1 x रेज टू पावर 0 आ गया. 1 एंड 0 काम शुरू कर सकते हैं. 3x रेज टू पावर 4 माइनस 4x रेज टू पावर 3 प्लस 0x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 is to be divided by x minus 1. How many terms are there in divisor, my dear friend? 2 terms. So we are going to select 2 terms. 3x raised to power 4 minus 4x raised to power 3. Now 3 ना नहीं है, लिख दो. चलो हो गया. How many x? X raised to power 4. We have only 1, so we will put 3. So we will write 3x cube. ठीक है, अब मल्टीप्लाई करो. 3x cube multiply by x, we get 3x raised to power 4. Now plus into minus, we get minus. 3x cube into 1, so we get 3x cube. Change the sign. Positive becomes negative, negative becomes positive, positive and negative get cancelled. Now here 4 is minus and 3 is positive, greater is 4, so we will write minus x raised to power 3. Another term to be brought here plus 0x square. ठीक है. Now what is required? Minus, so put a sign of minus. X cube and we have only 1x, so we will write x square. अब मल्टीप्लाई करो. माइनस इंटू प्लस माइनस x स्क्वायर इंटू x क्यूब माइनस इंटू माइनस प्लस x स्क्वायर इंटू 1 x स्क्वायर. चेंज द साइन. नेगेटिव बिकम्स पॉजिटिव, पॉजिटिव बिकम्स नेगेटिव. These two gets cancelled. Now 0 and minus 1, so we will write minus x square and minus 3x. Again, what is required? Minus, so put a sign of minus. X square, we have only 1x, so multiply it by x. ठीक है. अब देखो माइनस इंटू प्लस माइनस एंड x इंटू x स्क्वायर माइनस इंटू माइनस प्लस एंड x इंटू 1 x. चेंज द साइन. Negative becomes positive, positive becomes negative. These two gets cancelled. But here, dear friend, both are negative. Minus 3x minus x, that gives you minus 4x, and bring minus 1. Again you are getting a 2 terms. Now what is required? Minus, so we will put a sign of minus. 4x, so we will put a 4 over here. So 4x minus into minus plus 4 into 1 4. Negative becomes positive and positive becomes negative. These two get cancelled. But dear friends, minus 1 minus 4 gives you minus 5. So this is your quotient and this is your remainder. We can write the answer. Q of x is equal to 3x cube minus x square minus x minus 4 and r of x is equal to minus 5. लेकिन पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्तों. वी आर गोइंग टू लर्न वन मोर मेथड टू डायरेक्टली फाइंड द
रिमाइंडर, एग्जैक्टली यहां लिखा हुआ है फाइंड रिमाइंडर डायरेक्टली बाय रिमाइंडर थियरम। अभी जब हमने टॉपिक लिखा रिमाइंडर थियरम तो उसके बारे में भी कुछ बात तो करनी पड़ेगी ना मेरे दोस्तों। हाँ, तो अब हम p ऑफ x है आपके पास, g ऑफ x है। अगर कोई आपको पूछता है कि भाई व्हाट इज द रिमाइंडर, तो डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली रिमाइंडर थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे एंड रिमाइंडर विल बी योर आंसर। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही समझते हो यार आप लोग। चलिए सेम सम्स, p ऑफ x 3x रेज टू पावर 4 माइनस 4x क्यूब माइनस 3x माइनस 1, g ऑफ x माइनस 1, सो x इज इक्वल टू 1, नेगेटिव जो है वो पॉजिटिव हो गया। नाउ इट इज टू बी रिप्लेस्ड, x की जगह पे 1 रखो और प्यारो इसको सोल्व करो एंड देखो आपको p ऑफ 1 इज इक्वल टू माइनस 5, सो r ऑफ x इज इक्वल टू माइनस 5 इज योर सही जवाब। तो दिस इज अ लॉन्ग डिवीजन मेथड एंड दिस इज अ रिमाइंडर थ्योरम टू फाइंड आउट डायरेक्टली द रिमाइंडर, डायरेक्टली द रिमाइंडर। इज दैट क्लियर? ना ना ना, अभी चलना है आगे। हाँ, अभी चलना है, आ रहा हूं। और एग्जाम्पल नंबर 8, एग्जाम्पल नंबर 9, TRY करना है, कोशिश। और बच्चन साहब ने भी कहा है फिल्म शराबी में, है ना, कोशिशें अक्सर कामयाब होती है। सो हियर वी आर सपोज टू ट्राई, मतलब दिल से कोशिश करेंगे, ठीक है, तो डेफिनेटली कामयाबी हमारे साथ होगी। लेट अस टेक एग्जांपल नंबर 10 और फिर हम आज की बात को यहां खत्म करेंगे। चेक वेदर द पॉलिनोमियल q of t 4t क्यूब प्लस 4t स्क्वायर माइनस t माइनस 1 इज अ मल्टीपल। हाँ, मल्टीपल होने के लिए रिमाइंडर क्या होना? 0। एग्जैक्टली, इफ रिमाइंडर इज 0 यू कैन से इट इज अ मल्टीपल ऑफ 2t प्लस 1। क्वेश्चन लिखा, g of t लिखा, 2t plus 1 is equal to 0, so 2t is equal to plus will become minus and t is equal to minus 1 upon 2। बिल्कुल सही पकड़े, हाँ सही पकड़े। क्या सही पकड़े हैं? हाँ, एक t की जगह पे we will write minus 1 upon 2, so 4 into bracket minus 1 upon 2 whole raised to cube plus 4 into bracket minus 1 upon 2 whole raised to 2 minus into bracket minus 1 upon 2 and आखिर में minus 1। Now odd number, sign will remain minus, but what is the cube of 2? 8। अब देखो 4 और 8 cancel, you got 2 square and sign minus, even power, so it will become positive 1, but what is the square of 2? 4, 4 and 4 get cancelled, so remaining is 1, minus into minus will become plus 1 upon 2 and minus, finally our uttar is minus 1 upon 2 plus 1 upon 2 minus 1। पॉजिटिव नेगेटिव का साइन क्या करोगे? कैंसल, माइनस एंड प्लस गेट कैंसल्ड, प्लस एंड माइनस गेट कैंसल्ड एंड फाइनली यू आर गेटिंग अ शून्य। फाइनली यू आर गेटिंग अ शून्य। सो वी कैन से q of minus 1 upon t is equal to 0 and therefore r of t is equal to 0। Now when you get r of t is equal to 0, we can say q of t is a multiple of g of t। ठीक है? हाँ, कहने के बाद मैंने सोचा चलो लिख भी देता हूं कि भाई PDF contains solutions of all examples and exercise। समझ में आ गया ना? बहाने मत करना, नोटबुक नहीं है, समझ में नहीं आया, ठीक है, कुछ डिफिकल्टी है तो डेफिनेटली पूछना, लेकिन कोशिश करनी है कामयाबी हासिल करने के लिए। तो चलो अब मैं यहां से चलूं, आप अपना काम करो, मैं अपना काम करूं। हैव ए नाइस डे एंड बाय बाय।